Welcome. The video today is about the lesson Spoken English and Broken English by George Bernard Shaw. This lesson is prescribed for BA 6th semester compulsory English syllabus. George Bernard Shaw was a famous dramatist and he is also known as a good critic and thinker also. And he has won a Nobel Prize for Literature in 1925 and an Oscar for Best Screenplay in 1938 for his adaptation of the play Pygmalion. बीए के सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए ये लेसन प्रिस्क्राइब्ड है कंपलसरी इंग्लिश में एंड दिस वीडियो विल बी मल्टीलिंगुअल मराठी हिंदी एंड इंग्लिश तीनों भाषाओं में हम लोग थोड़ा मिक्सचर करके इसको बनाएंगे. ओके तो अभी हम लोग देखते हैं स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश का कंसेप्ट क्या है. एज यू ऑल नो spoken English is very much popular these days and since last decade or 2 decades पिछले 10 या 20 सालों से स्पोकन इंग्लिश का बड़ा फैड है. स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, क्या सही में वही भाषा सिखाई जाती है जो हम लोगों को ज़रूरी है बातचीत करते समय, क्या वही वोकेबलरी दी जाती है जो बातचीत करते समय सभी को ज़रूरी होती है, एक चीज़. दूसरा है ब्रोकन इंग्लिश. Broken English is something which we can call in general terms where vocabulary, construction of sentences, choice of words, gender, tense, these are generally confused. They are not standardized as per the situation. जशी परिस्थिती आहे तशा प्रकारातले चॉईस करायचं वर्ड्सचं, टेन्सेसचं, सेंटेन्सचं कन्स्ट्रक्शन हे बऱ्याचशा लोकांना जमत नाही, कारण त्यांना ते पूर्णपणे अजून शिकून व्हायचं असतं की बा कन्स्ट्रक्शनचे नियम काय आहेत, टेन्सचे, ग्रामरचे नियम काय आहेत आणि मग ते जसं त्यांना वाटतं तसं एखाद्या सिच्युएशनमध्ये स्वतःला प्रेझेंट करतात. दॅट इज ब्रोकन इंग्लिश. बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पर्पज ऑफ स्पीकिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू सेंड योर मैसेज अक्रॉस. ओके, that means you are the sender and the person whosoever stand before you is a receiver. So once you send a message and it is received by the receiver and understood, communication is complete. यह दो तीन फैक्टर्स इम्पॉर्टंट होते हैं, जैसे की संवाद साधताना आपण कुठल्या प्रकारचे शब्द वापरतो आणि तुमचा संवाद किंवा तुम्ही बोललेले वाक्य समोरच्या व्यक्तीपर्यंत कसल्याही अडथळ्याशिवाय पोचतात का. मतलब अडथळा कसलाही असू शकतो, म्हणजे आपण बोलतो आहे आणि खूप जोराचा वारा आहे, समोरच्या व्यक्तीला आवाज पूर्णपणे जात नाही आणि आपण एक शब्द उच्चारतो आणि त्यांना तो शब्द जरा वेगळ्या पद्धतीचा वाटतो आहे, तो असे काही ऑब्स्टॅकल्स पण असतात. म्हणजे वेन वी लर्न कम्युनिकेशन वी लर्न अबाउट ऑब्स्टॅकल्स इन कम्युनिकेशन, तो उसमें ये एक फैक्टर होता है ऑब्स्टैकल्स का. सो वॉट एवर, spoken English is the one which people find that it is a standard language, okay, and it does not have any faults. दूसरा है broken English का. broken English is something which is looked down, okay. people those who commit mistakes, जो लोग मिस्टेक्स करते हैं बातचीत करते समय, उन लोगों के तरफ में थोड़ा दूसरे नज़रिए से लोग देखते हैं. जैसे कि that the guy, the individual does not know it but is trying his hard, okay, to speak and deliver a proper sentence, but he is failing into it, okay, and he is failing repeatedly, so people laugh at it. लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं. तो असंही बऱ्याचदा होत असतं, बट द अटेम्प्ट शुड बी अप्रिशिएटेड. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोर ओवर, when we look at the features of English language, we find that being a colonial language which is used throughout the world in different corners of the world, we find that there are different versions of it, different adaptations of a language. Like in India only, a major difference is found that if we compare Indian English with the English which is spoken by the native countries, we find that India has the neutral accent of the language.
It does mean that anybody who is able to know even the basic features of English language can understand all the sentences delivered by an Indian, because there is no standardized pronunciation. It's a neutral pronunciation we use in India. But within India, we have other categories also. Like people, those who are in the southern part of India, use a different English. People, those who are in the eastern part of India, use a different English. In your city, the choice of words, the way it is pronounced, and the way it is used is different. When you travel to a different city, that means out of your state, it is actually different. And then you find that अरे यहाँ के लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे इधर तो ऐसे बोलते हैं. So within country you also have different versions or adaptations of the language, but this cannot be called that the language you speak in your city is standardized and the language which is used in other cities or states is non-standardized. Every geography has its own adaptation in case of language. जब हम लोग जीबी शॉ का ये टेक्स्ट देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश का, तो हमें ये पता चलता है दैट जीबी शॉ इज आल्सो ट्राइंग टू कैटेगराइज these two things. Which things? One is these are two different issues. Spoken English is a different area, broken English is a different area, but what we have begun with is the importance of communication, whether communication is done. Okay, and then we can go for whether somebody wants only the standard versions of language, or is there someone who is happy with even the non-standard version of language. What is the objective? Even if there is no standard version, the only objective is, are you able to send a message? And now the world today, we find that people are using smartphones, mobile phones to send messages. Okay, there is a lot of social media platforming also where we can send messages across. But does everybody know the correct sentence pattern while he or she writes a message? No. Not even 50% of the total population, those who are using English script to write or to type a message in a smartphone, do not have proper information on construction or choice of vocabulary or spellings at least. But we find that yet the script is used, messages are sent across, and they are replied in positive or negative, whatever. The communication is completed even with the help of wrong spellings, wrong choice of words, and improper or faulty construction of sentences. So where is the focus of sender and receiver? The focus is on the completion of communication. It is not about spellings, it is not about constructions. एक गोष्ट जी आपल्या लक्षात येते ती ही की संभाषण होणं खूप महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी तुमच्या स्पेलिंग्स चुकतात का, किंवा तुम्हाला प्रॉपर ग्रामर येतं की नाही, हा इश्यू सध्या तरी आपण त्याला म्हणू किंवा सस्पेंड केला जातो. त्या विषयावर कोणी बोलत नाही. याला कारण हे आहे की लक्ष जे आहे ते कशाकडे आहे, तुमचं कम्युनिकेशनकडे. ते कम्प्लीट होत आहे का ते महत्त्वाचं आहे. जीबी शॉ आपल्याला काय सांगतात आहे की करेक्ट इंग्लिश हा जो पॅटर्न आहे, म्हणजे इफ यू आर लुकिंग फॉर इट ॲट ऑल, इफ यू आर लुकिंग फॉर करेक्ट इंग्लिश, देन इट एग्जिस्ट्स नोवेयर. ये कहीं पर नहीं है. करेक्ट इंग्लिश कहीं पर नहीं है. दिस इज अ स्ट्रेंज इशू इन इटसेल्फ. एंड हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो करेक्ट इंग्लिश? एटलीस्ट म्हणजे हम लोग अगर मराठी या हिंदी भाषा के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड हिंदी कहाँ पर है या स्टैंडर्ड मराठी कौन सी है, इसके बारे में हम लोग अगर कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ठीक है, स्टैंडर्ड मराठी जो है वो महाराष्ट्र में है. बट ये आंसर सही है कि स्टैंडर्ड मराठी महाराष्ट्र में है? नहीं. वाई? बिकॉज इट्स अगेन द सेम रूल. हर ज्योग्राफी ने अपनी अपनी मराठी बना के रखी है. हर हिंदी स्पीकर ने अपनी अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हिंदी का वर्जन बना के रखा है. तो स्टैंडर्ड हिंदी या स्टैंडर्ड मराठी या करेक्ट हिंदी या करेक्ट मराठी, ये हम लोग कहाँ पाएंगे? मे बी इन द टेक्स्ट बुक्स ओनली.
टेक्स्ट बुक्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टडीज इन स्कूल्स, कॉलेजेस और इन हायर एजुकेशन। बातचीत वाली भाषा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि करेक्ट भाषा का उपयोग करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। अब ये कैसे है, जैसे कि हमें शहर में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वी गो फॉर पब्लिक कम्यूटिंग, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग किसी सिटी बस वाले को या किसी ऑटो रिक्शा वाले को पूरे सेंटेंसेस में अपनी जानकारी नहीं देते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट ए वेटिंग फॉर एन ऑटो रिक्शा, ठीक है, और मुझे बी पॉइंट जाना है, तो ऑटो रिक्शा वाले से मैं पूरे सेंटेंस में बात नहीं करता हूँ। आई डोंट आस्क हिम आर यू गोइंग टू पॉइंट बी, आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू पॉइंट बी, वुड यू प्लीज अकोमोडेट। क्या आप पॉइंट बी के तरफ जा रहे हैं, मुझे भी पॉइंट बी के तरफ आना है, क्या आप मुझे लेके जा सकते हैं। इतने सेंटेंसेस हम लोग ऑटो रिक्शा वाले को डिलीवर नहीं करते हैं। हम लोग तो बस एक या दो शब्द बोल देते हैं, कौन से, पॉइंट बी, वो कहता है हाँ, फिर हम लोग बैठ जाते हैं, इजंट दिस, अपना डेस्टिनेशन आता है, उतर जाते हैं। तो 3 सेंटेंसेस का कम्युनिकेशन जो है वो हम लोगों ने 2 शब्दों में कंप्लीट कर लिया, पॉइंट बी, यस, कम ऑन। सो दैट्स हाउ we use different versions of communication। कभी कुछ लोग सेंटेंसेस यूज करेंगे, कभी कुछ वर्ड्स यूज करेंगे। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंसेस का या करेक्ट भाषा का कोई संबंध ही नहीं है। सो इन केस ऑफ इंग्लिश, if you are looking for correct English, it does not correlate itself with any geographical area. You know why? Because every geographical area has its own version or adaptation of language। अब ये मैटर जो है करेक्ट इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश या ब्रोकन इंग्लिश ढूंढने का कहाँ से शुरू होता है। ये जीबी शॉ जो है वो एक कमिटी के मेंबर है। दैट कमिटी एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये दैट्स बीबीसी, ये पॉपुलर नाम है बीबीसी। वहाँ की एक कमिटी के वो मेंबर है एंड द कमिटी इज फॉर्म्ड with a basic objective purpose of deciding how the utterances of speakers employed by the corporation should be pronounced in order that they should be a model of correct speech for all the British Islands। BBC में अपने आप में एक इशू है। BBC is basically broadcasting corporation, they have their televisions, their radios, their documentaries, okay। So उनका काम ये है कि कॉरपोरेशन के लोग, मतलब ब्रॉडकास्टिंग के लोग जो रेडियो या टीवी पर बातचीत करेंगे, ये लोग जो भाषा यूज़ करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए, उनके प्रोनाउंसिएशन ऐसे होने चाहिए कि पूरे के पूरे ब्रिटिश आइलैंड में वो एक ही भाषा सबको समझ में आए। नाउ दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या फिनिश किया, सब लोगों के प्रोनाउंसिएशन अपने अपने ज्योग्राफी में, कल्चर में अलग अलग होते हैं। भाषा चाहे सेम ही हो, जैसे मराठी आपण जी नागपुरात बोलतो ती सारखीच मराठी भंडारा जिल्ह्यात बोलली जात नाही, सारखीच मराठी बुलढाण्यात बोलली जात नाही, सारखीच मराठी पुण्यात बोलली जात नाही, तीच मराठी मुंबईत सुद्धा बोलली जात नाही। म्हणजे ते लागून आहेत शहर, नागपूर भंडारा लागून आहे, चंद्रपूर आणि नागपूर लागून आहे, तरी सारख्याच मराठीत लोक काही बोलत नाही। आणि एक साधारण आपण फरक करतो की बा पश्चिम महाराष्ट्रातली मराठी भाषा जी आहे ती अशी लयबद्ध आहे, म्हणजे यू फील दॅट देअर इज अ लिटल सॉन्ग इन टू इट, त्याच्यात छोटंसं गाणं पण आहे त्या मराठी बोलण्यामध्ये, तो इतका फरक पडत असतो भाषेमध्ये। आता आपण काय बघतो आहे की ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो आहे यांच्या जे हे आहेत म्हणजे अनाउन्सर्स आहेत किंवा न्यूज रीडर्स आहेत, त्यांनी करेक्ट किंवा स्टँडर्ड प्रोनाउन्सिएशन यूज करावे म्हणून या ठिकाणी एक कमिटी तयार करण्यात आली आहे आणि त्यात जीबी शॉ मेंबर आहेत। ॲक्च्युअली अजूनही बरेचसे मेंबर्स आहेत तिथे। आपण बघूया की चेअरमन जे आहेत ते एक पोएट लॉरेट आहेत। पोएट लॉरेट म्हणजे ही अतिशय उच्च प्रकारातली पदवी आहे, लिटरेचरमध्ये भेटत असते आणि ते स्वतः एक आर्टिस्ट पण आहेत बेसिकली, अँड ही हॅज गुड अमाऊंट ऑफ स्टडी ओव्हर इंग्लिश, ठीक आहे। आणि एक अजून दुसरे मेंबर आहेत सर जॉनसन फोर्ब्स, ओके। आणि जॉनसन फोर्ब्स जो है वो एक एक्टर है। अब देखिए कमिटी में किन किन लोगों को लिया गया है। जीबी शॉ खुद एक ड्रामेटिस्ट है, मतलब एक ऑथर है, राइटर है, एक एक्टर भी है फोर्ब्स रॉबर्टसन,
आणि एक पोएट लॉरेट घेतलेले आहेत ज्यांचं प्रोनाउन्सिएशनवर म्हणजे चांगलं कमांड आहे. असे एक मिक्सचरवाली कमिटी बनाई है इन ऑर्डर टू क्रिएट दी करेक्ट और स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन फॉर बीबीसी वर्कफोर्स. ठीक है, ती वहाँ जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए. अब ये जीबी शाह को सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैं राइटर हूँ और राइटर लोग स्टैंडर्ड भाषा यूज़ करते हैं, ये सोचकर शायद मुझे लिया गया होगा, ऐसे उनको लगता है. अभी हम लोग देखें कि कमिटी को सबसे पहला जो मीटिंग होता है, सबसे पहला कमिटी का मीटिंग जो है, इन दैट मीटिंग ओवर कप ऑफ टी से पॉसिबली दे आर ट्राइंग टू डिसाइड अबाउट द करेक्ट इंग्लिश. टास्क ही वही है, कमेटी को जो टास्क दिया है वो है कि करेक्ट इंग्लिश क्या है. अब करेक्ट इंग्लिश क्या है ये देखने के लिए पहली ही मीटिंग में नेचुरल है कि कुछ इश्यूज लिए जाएंगे. सिंपलेस्ट इश्यूज से कोई भी मीटिंग या कमेटी का काम शुरू होता है, सिंपलेस्ट इश्यूज से. जैसे हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी में भी अगर कोई छोटी सी मीटिंग रहती है रेसिडेंट्स की, तो सिंपलेस्ट इश्यूज जो है वो सबसे पहले लिए जाते हैं. ठीक है, उसी तरह से बीबीसी ने जो कमेटी बनाई है वहां पर इनका काम शुरू होता है सिंपलेस्ट इशू क्या है. एंड नाउ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश द कमिटी पिक्स इट. कौन से दो वर्ड्स लेती है? यस एंड नो. ये सबसे कॉमन वर्ड है, मतलब वो किसी भी भाषा के कॉमन वर्ड हो सकते हैं. मराठीत आपण त्याला होय आणि नाही. आता मराठीतही होय असं म्हणायचा शब्द आहे म्हणजे बोलताना, पण आपण होय असा शब्द कधी वापरतो का? मला जरा डाऊटच आहे. आपण हो असा शब्द वापरतो. नाही हा एक शब्द जनरली लोक पूर्ण ताकदीनं वापरतात, कारण दोन्ही शब्दांचं प्रोनाउन्सिएशन करायचं आहे. इंग्रजीत यस आणि नो हे दोन शब्द कॉमन है. हिंदी में हाँ नहीं ये दो शब्द कॉमन हो सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम समय यूज किए जाते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि कमिटी के ये 3-4 लोग, एक पोएट लॉरेट है, एक जीबी शॉ इतने बड़े वर्ल्ड नोन ड्रामेटिस्ट हैं, एक अच्छे एक्टर है रॉबर्टसन. ठीक है, ये लोग मिलकर जब यस और नो का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करने की छोटी सी कवायद करते हैं, एक लिटिल एक्सरसाइज इज डन that how yes and no should be pronounced as per the correct pronunciations. Now you will see that each of the man in the committee hails from a different background, different in the sense that they may be from different geographies, they may be from different localities, they may be from different cultural background, or they may be belonging to different religion. It is also possible that they may have different educational background also. As we know, ये तीनों चारों लोगों के प्रोफेशन भी अलग अलग है, तो सब लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपने बैकग्राउंड के मद्देनजर इन दो वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया होगा ये अभी कोई बता नहीं सकते हैं. दे बिगिन टू डिस्कस कि कैसे करेंगे, बिगिन टू डिस्कस yes and no, and they find that there is no single or exact or only way, or we can say exclusive way to pronounce yes and no, and the committee finally does not agree upon the correct pronunciations of yes and no. And if this is the simplest issue to begin with, यस और नो का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करना अगर सिंपलेस्ट काम था और उसी पर इन लोगों की एक राय नहीं बनी है, तो आगे यूं समझ लो कि अंग्रेजी भाषा के इतने सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तरीके से डिसाइड करने के लिए कमेटी काम बिल्कुल नहीं कर सकती है. वाई? सिंपलेस्ट इशू ही तो सॉल्व हुआ नहीं. सब लोग कहते हैं कि यस का प्रोनाउंसिएशन ऐसा करना चाहिए, मतलब जी बी शॉ कहेंगे यस शुड बी प्रोनाउंस लाइक दिस, पोएट लॉरेट बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो ड्रामेटिस्ट जो है वो बोलेंगे नहीं हम लोग एक्टिंग में हम लोग यस को इस तरह से नहीं प्रोनाउंस करते, हम लोग इस तरह से करते हैं, कुछ अलग तरीका है. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ प्रोनाउंसिंग यस एंड नो, एंड वी फाइंड दैट दिस एक्चुअली लीड्स टू अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इट इज इम्पॉसिबल. अनसर्टेनिटी तो क्रिएट होती है कि क्या सही में कौन सा तरीका होगा जिससे हम लोग यस और नो का प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं, एक चीज. दूसरी ये कि आर वी एबल टू
handle the task of deciding pronunciations of all the words in English language? The answer is no. हो ही नहीं सकता. सिर्फ 2 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अगर कमिटी डिसाइड नहीं कर पा रही है तो आगे इतनी बड़ी वोकैबुलरी का प्रोनाउंसिएशन वो लोग नहीं कर सकते. अभी लेट अस गो अहेड, इसके आगे चलते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि वो कमिटी में यू विल से कुछ आयरिश बैकग्राउंड के भी मेंबर्स हैं, ऑक्सफोर्ड के मेंबर्स हैं, और सभी लोग अच्छे स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड के हैं. सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे, हम लोग देखेंगे कि बड़े ओहदे वाले लोग हैं. पर इसके बावजूद उन लोगों का अपना कोई एक राय नहीं बन पाती है कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं. ठीक है. एंड देन हम लोगों ने मतलब ये कमिटी सोचती है कि सभी लोग जो है ये अपने अपने हिसाब से बातचीत कर सकते हैं. एंड द ओनली थिंग इज कि वो समझने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो समझते हैं क्या? मतलब जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, आपने कोई मैसेज भेजा, सामने वाले को वो समझ में आया, उसका रिप्लाई आता है, तो आपकी स्पेलिंग गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स वन थिंग शुड बी नोटेड दैट यू ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द स्पेलिंग वॉज रियली मतलब गुड और नॉट. क्यों? क्योंकि अगर आप उसी गलत स्पेलिंग से अपने खुद के इंप्रेशन में रहेंगे कि इससे काम चल जाता है, तो आप सही स्पेलिंग कभी नहीं सीख पाएंगे. वो उसमें एक डिसएडवांटेज है. तो चाहे मैसेज भेजने के लिए आपने किसी स्पेलिंग का शॉर्टकट यूज़ कर लिया हो, जैसे ग्रेट लिखने के लिए लोग आजकल क्या करते हैं, GR एंड 8 है ना, इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो दैट इज ग्रेट. ओके, बट इफ यू गो फॉर दिस स्पेलिंग्स, ओके, स्पेलिंग्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, नॉट ओनली दिस, तो आपको पता चलेगा कि स्पेलिंग्स बहुत ही अलग है. तो यहाँ पर GR और 8 लिखने के पीछे मुद्दा क्या है? ग्रेट बोलना है, सामने वाले को उसका मतलब समझ में आना चाहिए. अगर उसे समझ में आया और उसने अगर थैंक यू कर दिया या एक स्माइली भेज दी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. एक मुद्दा वैसे ही रह जाता है स्पेलिंग सीखने का. आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाले को मैसेज मिल जाता है, तो वैसे भी वो इशू जो है वो कैजुअल हो जाता है कि स्पेलिंग सीखना ज़रूरी है भी या नहीं है. पर वो एक लॉस है कि आप हमेशा ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स पे अगर सरवाइव करेंगे तो आप स्पेलिंग्स कभी भी नहीं सीख पाएंगे. क्या पता कल चलकर किसी इंटरव्यू में अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ग्रेट की स्पेलिंग क्या है, तो वो शायद आपको ना आए, क्योंकि आपने GR8 के सामने कभी कोई कोशिश ही नहीं की कि ग्रेट की स्पेलिंग आनी चाहिए करके. दीज आर द डिसएडवांटेजेस, बट दे कैन ऑलवेज बी सॉर्टेड आउट. आप हमेशा स्पेलिंग्स सीखते रह सकते हैं. ठीक है. और आगे हम लोग देखते हैं कि कमिटी जो है यहाँ से आगे क्या है. आगे कुछ नहीं है. वाई? बिकॉज देयर इज नो व्हाट वी कैन से इज देयर इज नो इंटेग्रिटी ऑफ ओपिनियंस. इन सबके जो ओपिनियंस है वो मेल नहीं खा रहे हैं. तो GB शॉ जो है वो मतलब यहाँ क्लियरली नोट डाउन कर रहे हैं कि कमिटी किस तरह से काम कर रही थी. उन्होंने उसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं रखे हैं कि मैंने कमिटी की ये बात नहीं बतानी चाहिए, वो बात नहीं बतानी चाहिए. इस तरह से इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल लैंग्वेज क्या है. करेक्ट इंग्लिश, मॉडल इंग्लिश, स्टँडर्ड इंग्लिश. जैसे मराठी में हम लोग देखते हैं प्रमाण भाषा. म्हणजे मराठीत प्रमाण भाषा कोण बोलतं? कोणीच नाही. कशासाठी? ती वेळखाऊ असते. सगळ्यांकडे प्रमाण भाषेची प्रमाण वोकॅब्युलरी नसते, म्हणजे चॉइसेस वर्ड्स का चॉईस नाही रहता. सगळ्यांना प्रमाण व्याकरण माहिती नसतं. म्हणजे प्रमाण भाषा बोलायची आहे, स्टँडर्ड भाषा जर बोलायची आहे, तर आपणाला स्टँडर्ड वोकॅब्युलरी, स्टँडर्ड कन्स्ट्रक्शन, स्टँडर्ड रूल्स ऑफ ग्रामर हे खूपच आवश्यक आहे, आणि ते कोणाकडेच नसतं. त्यामुळे प्रमाण भाषा वापरण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. हिंदी में भी ऐसे होता है. नागपुर में हम लोग देखेंगे, मतलब इस सिटी की बात करें हम लोग, तो देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिंदी ऑल्सो. यू गो टू दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सिटी एंड देर इज डिफरेंट हिंदी. You go to the eastern part of the city and there is different Hindi. So within city there are different versions of language. So never say die. हम लोग स्टैंडर्ड भाषा के पीछे हम लोग कभी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड भाषा एग्जिस्ट नहीं करती है. जैसे शुरुआत में ही GB शॉ ने बता दिया. आप लोग किसी भाषा के पूरे फीचर्स को भी देख सकते हैं एक बार, पर स्टैंडर्ड भाषा के बारे में हम लोग ऐसा कोई ओपिनियन नहीं बना सकते. आगे वो कहते हैं कि मैंने ये कन्फेस कर देना चाहिए
कि मैं खुद भी स्टैंडर्ड भाषा नहीं बोलता हूँ. यू जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड नोन ड्रामेटिस्ट लाइक GB Shaw is actually trying to at a later description we find that GB Shaw is mentioning his own case, where he mentions that if he has to ever talk to his wife, maybe at very nearer distance, even then the wife doesn't get his message clearly. So this is just more like a confession. एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि GB Shaw खुद होकर बता रहे हैं कि अगर मैं अपनी वाइफ से भी बात करूं जो कि 4 या 6 फीट के डिस्टेंस पे मतलब हो, तो उसे भी मेरी आवाज़ या मेरा मैसेज जो है, जो मैं भाषा यूज़ कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, वो क्लियरली सुनाई नहीं देती है. ऐसे क्यों होता होगा? जबकि ये पॉसिबल है कि मैं कुछ 100 लोगों के बीच में भाषण दे रहा हूँ तो लास्ट आदमी भी मेरी भाषा बराबर समझ पाता है, पर घर में ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज जस्ट अ फनी इंसिडेंट, बट अदरवाइज हम लोग देखते हैं दैट आर यू इंटरेस्टेड टू हियर, टू लिसन, टू रिसीव, टू अंडरस्टैंड, टू गेट इंफॉर्मेशन? क्या आपका अपना इंटरेस्ट है? If it is not there, if you lack the manner of interest, the manner of receiving a particular piece of information, then even though at a clearer background and in the most clear pronunciation a piece of information be delivered to you, you will not be able to receive it, you won't get the message out of it. And this is true. GB Shaw घर की बात इसलिए बता रहे हैं, उनको ये वो पुट अक्रॉस करना चाहते हैं कि जब हम लोग कैजुअल सिचुएशंस में होते हैं तो बहुत सी बार हमारा मैसेज जो है या हमारी बातचीत जो है वो सीरियसली नहीं ली जाती है. अगर वो सीरियसली नहीं ली जाती है, इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं हैं. आप अटेंटिव नहीं हैं, इसका मतलब कि कितनी भी अच्छी वोकेबलरी में, कितने भी अच्छे प्रोनाउंसिएशन में वो आपके पास में भेजा जाए मैसेज, आप उसे नहीं समझते हैं. एंड परहैप्स यू मे आस्क यू मे आस्क फॉर रिपीटेशन. जैसे हिंदी मराठी में क्या बोल रहा, हिंदी में क्या कहा आपने, और इंग्लिश में पार्डन, दैट इज सो सब कुछ सही होने के बावजूद भी रिपीटेशन मांगा जाता है. वो एक बड़ा सा कारण है उसका. आगे वो हम लोगों को बताते हैं कि बहुत सी बार ऐसा भी हो कि लोग मुझे जानते हैं, जैसे दैट आई एम GB Shaw, ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एंड ही इज़ अ ग्रेट राइटर. इसके बावजूद कुछ लोग मुझे शायद बराबर से ना समझ पाए व्हेन आई डिलीवर सम सेंटेंसेस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. So and people fail to get it. It does mean that it's a failure. I am a great writer, that is okay, but am I a great speaker also? If the last man fails to understand my words and piece of information, that I am a failure. It does mean that I haven't delivered the message clearly, considering that there at the far end is also an individual who wants to listen to. So we should be careful about communication all the time. ये एक सीख हम लोगों को मिलती है कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत आपने इस तरीके से करनी है कि एकदम आखिरी नोड पर बैठा हुआ इंडिविजुअल भी आपकी भाषा और आपके वर्ड्स समझ सके. ये बहुत ज़रूरी है. आगे वो कहते हैं कि हम लोग जैसे लंदन में हैं और हम लोगों ने अगर किसी को फुल सेंटेंस में अगर कोई जानकारी पूछ ली, जैसे मैंने आपको नागपुर सिटी का एग्जांपल दिया था, तो पीपल वुड लुक एट यू इन अ स्ट्रेंज वे दैट ओह ही और शी सीम्स टू बी न्यू इन द सिटी एंड देयरफॉर ही और शी इज यूजिंग फुल सेंटेंसेस व्हेन ही और शी हैज टू कन्वे समथिंग. पूरे सेंटेंस यूज करेंगे इवन इफ इन दी नेटिव कंट्रीज, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्टैंडर्ड भाषा या करेक्ट भाषा यूज करने की आदत किसी को नहीं है. पीपल यूज व्हाट दे वांट टू यूज. पीपल हैव देयर ओन चॉइस ऑफ वोकैबुलरी. दे डू नॉट गो बाय बुक्स और द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स ऑफ ग्रामर. ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है. जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी मराठी के साथ में नहीं होता है, वैसे ही लंदन में भी, मतलब किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इंग्लिश के पूरे ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी यूज करने का पैटर्न,
सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं वैसी भाषा बातचीत करते समय नहीं यूज की जाती है। हम लोग अभी धीरे धीरे ब्रोकन इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। ओके, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट ब्रोकन इंग्लिश क्या बताती है हम लोगों को? एकदम शुरुआत का मैसेज क्लियर क्या था कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस चाहे कैसे भी हो, आपको उसकी लिबर्टी नहीं लेनी है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। वो चाहे कैसे भी हो, आपका मैसेज सामने इंडिविजुअल के पास में पहुंचना चाहिए क्लियरली, और उसमें से उन्हें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। Isn't this? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अभी हम लोग नेटिव स्पीकर्स का भी अगर एग्जाम्पल ले, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी अगर हम लोग जाए और हम लोग अगर स्टैंडर्ड सेंटेंसेस यूज करने लगे वहां जाकर, तो लोग आपके तरफ स्ट्रेंज नजरिए से देखेंगे एंड दे विल कंसिडर दैट ही और शी इज स्पीकिंग अ डिफरेंट इंग्लिश, जबकि वो स्टैंडर्ड भाषा ही यूज करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। We will try to put in ourselves into a standard situation. We will try to find out standard vocabulary, standard construction, okay, standard patterns of delivering a sentence. But if you do this in an English speaking country, you will find that people look at you in a strange way. Why this happens? Because they never do it. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? बातचीत वाली भाषा, कम्युनिकेशन वाली वोकैबुलरी हमेशा एट इंस्टेंस डिलीवर करते हैं। जैसे आप मराठी हिंदी में करते हो वैसे ही वो भी करते हैं। हम लोग जैसे ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान न रखते हुए बातचीत वाली भाषा को आगे मतलब बढ़ाते रहते हैं। द सेम वे ऑल्सो you know these English speaking people do, okay, when they are at their native places. The only thing is when they hear something as a standard sentence they find it strange कि ये कुछ तो भी अलग ही है शायद। ओके, आगे वो कहते हैं कि कोई फॉरेनर के साथ में अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब वही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अगर आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि आपको मतलब दे विल ट्राई टू जज यू फॉर वन और टू रीजंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट इज द लैंग्वेज यू स्पीक, ओके, एंड इफ दैट इज द सेम लैंग्वेज विच द नेटिव स्पीकर इज यूजिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज इट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप जब किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री का स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज जितने ज़्यादा बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा सीरियसली यूज़ करने की कोशिश करेंगे, the strangeness will continue. The native speakers would look at you in a different way for the reason that you are using a different language. Actually the language is theirs own. नेटिव स्पीकर की लैंग्वेज है पर आप वहाँ के नॉन नेटिव है, एंड यू आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड वर्जन विच यू हैव लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स. That standard version appears non-standard to them, or either the standard version appears strange to them. Here is the difference. Now if you continue with the non-standard version, they will be ready to help you considering that, oh, this guy is from a different country and he needs help. But if you are going to use the correct or the most correct and standard formats of language, then they will not be readily helping you for the reason that they will consider that you are perfectly fit in the situation and you might not need any help also. So it is better to use what you know rather than running behind what you do not know. सिंपल सा मैसेज है, जो आपको पता है उसे यूज करने की कोशिश करेंगे, लोग इजीली आपको जान जाएंगे कि आप वहां पर नए हैं और आपकी मदद की जाएगी। पर आप अगर उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपको पता नहीं है और आप उसको यू वांट टू नो इट डेस्परेटली, देन देयर आर चांसेस दैट यू विल मेक मिस्टेक्स। सी व्हेन वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई मीन एनी फॉरेन लैंग्वेज, कुछ भी हो, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज होती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिक जो लर्नर होता है उनके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एक रहता है डायरेक्ट लर्नर और एक रहता है इनडायरेक्ट लर्नर. Direct learner actually picks up sentences and vocabulary from standard text, from standard sentences, from standard hearing, and tries to use it according to the situation without making any or lesser modifications into it. And he becomes an expert
in delivering sentences. Basically, his presence is felt in a crowd because he uses standard sentences. In case of indirect learner, we find that indirect learner actually tries to make up the language. He chooses vocabulary, he chooses rules of grammar, he chooses the patterns of sentences, then makes them into standard sentences and delivers it. ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. Indirect learner actually makes lesser mistakes, but it takes more time. Direct learner के केस में ऐसा होता है that he doesn't require too much of thinking, he doesn't require too much of time to construct a sentence because he has many standard sentences and vocabulary already in his mind. So the only thing is he has to deliver it. Shorter space में वो deliver कर देता है, but there are chances that he may make mistakes. Indirect learner mistakes कम करते हैं, but समय ज़्यादा लेते हैं. Direct learner जो है वो मिस्टेक्स ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं, पर वो समय कम लेता है. So each method also has its own advantages and disadvantages also. From the text, spoken English and broken English is actually a radio talk by G.B. Shaw, and here he wants to instruct us. He wants to give us a notice basically that the purpose of communication should be achieved. The purpose of communication should be fulfilled in a faultless way, irrespective of the language you know. That is, if you are trying to say that I will not speak a word or a sentence unless I know the correct rule of grammar, you will not be speaking at all to anyone, because there are number of rules. If you go for I will speak about and taking consideration of whatever I know, then you will be a good speaker, for the reason that you will be happily delivering what you know. So never pursue what you do not know. Try to follow what you know and deliver it. That is the simple message. Now what he says, that I am reading the last paragraph. Even in private intercourse with cultivated people, cultivated say for educated cultured people, you must not speak too well. Now this is a caution. Apply this to your attempts to learn foreign languages and never try to speak them too well. So why he suggests like this, that I am trying to learn English language, but I'm trying to make it at least towards the most perfect level, so that I should appear a native speaker to everybody else. I should be fluent and people could be impressed by the choice of vocabulary and sentences. But what G.B. Shaw suggests is that you should not try to speak the foreign language, whatever you are learning, too well. So try to speak the broken version. Okay, why? He says, and do not be afraid to travel. You know why? Because only traveling gives you the opportunity to speak and use too many languages, okay, or at least variants of a language. You will be surprised to find how little you need to know or how badly you may pronounce. The purpose is completion of communication, successful communication. You should not go for those standard patterns of pronunciation, standard vocabulary, standard sentences. You may have very less vocabulary, you may have very less rules of grammar to your knowledge, but do you know the language at least partially, or at least to complete the communication? If it is a yes, then it's a big yes to communication. Okay, even among English people, to speak too well is a pedantic affectation. Now what happens is, in English speaking countries, when people talk to each other, they use the regular speech, they use the conventionally used vocabulary. Okay, they do not go for the standard ones. And if anybody tries to go for the standard vocabulary, standard choices of words, standard construction of sentences, then the same thing happens. Even the native speakers look at this native individual in a strange way, that he or she is trying to make too much of the language. In the beginning of the paragraph, what we have said, what G.B. Shaw instructed us, do not speak too well. Okay, otherwise people would look at you in a strange manner.
It happens with the native speakers also. And in a foreigner, it is something worse than an affectation. Why? Because the foreigner has a particular language in a foreign mode. Okay. It is an insult to the native who cannot understand his own language when it is too well spoken, and it is just not a matter of fun, but it happens that when a particular language is spoken in a too well or standard manner, the native speakers also the native speakers also find it difficult to understand, and they feel that this is something insulting to it. Okay, I am a native speaker and I should be able to understand my language in a clear way. But when the language which I speak is being used by another individual, then it will be easily understood, decoded with a message. But when somebody speaks it in too formal way, in too well way, we find that it cannot be understood by a native speaker also. There is the problem. G.B. Shaw finally gives us a thing. What is it? He says, that is all I can tell you, and the record will hold no more. Goodbye. That is the last line. Why he says that? He says like that, the record will hold no more. He says he says it for the reason that though he has been trying to instruct people about the correct use of language, the correct spoken language, he is basically of the opinion that only the broken patterns of languages, broken English in itself, okay, if you are at all discussing English language, will be more useful than the standard or correct English, because a broken language which is used by the commoners or by all or by maximum number of population is the one which serves the purpose of communication, and the rest is just a packet of rules. So when we study communication, we should be able to have a conviction about learning a language, and that is, if you are going for learning a foreign language, learn the broken version and use it. It is only then you will be instructed by the rules of grammar, by the patterns of sentences, by the choice of vocabulary, that something needs to be corrected, and then you may shift to the correct or standard version of language. But unless you start using it, you will not be finding it easier to use it. That's all about G.B. Shaw's spoken English and broken English. Thank you very much.